Ya Reza, Ya Reza, Ya Reza, Ya Reza, Ya Reza, Ya Reza. He's our beloved earth Imam Ali bin Musa Reza, born in Madinah on 11 Zulqa'dah 148 of Hijrah. He was named Alim Muhammad by Imam Sadiq alayhi salam. He was given the title of Reza because both of his friends and enemies loved him. He introduced many sciences to this world and had discussion with Christians, Jews, philosophers, atheists, and Muslim scholars. At the time of Imam Ali Reza alayhi salam, the Abbasid Empire was facing many difficulties, including various uprisings from the followers of al-Bayt. To counter, Ma'mun Abbasi summoned Imam Reza alayhi salam to Khorasan and declared him his crown prince. When Imam Ali al-Reza alayhi salam was on his way to Khorasan, he stayed in the city of Qum for a few months, and there he established these commemorative majlises. In Tus, where he stayed for over a year as higher apparent to the emperor, Imam re-established these majlises there too. This tradition was initiated by Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam and then continued by the 6th Imam. But during those times, only those who came to visit Imams in their homes were narrated these stories. As soon as the question of Muharram was cited, majlises of Karbala began. Everybody was expected to recite the sad events that befall the Prophet's descendants and maintain a serious atmosphere of sorrow and grief. The historians and the narrators have unanimously agreed that he was the most knowledgeable of the people of his time, the most meritorious of them, and the most learned of them in the precepts of religion and other sciences such as philosophy and medicine. The Imam Reza was the most learned of the people of his time and was the highest authority in the Islamic world. Religious scholars and jurists would send to him their questions about Islamic precepts. Ibrahim bin al-Abbas has said, when Imam al-Reza was questioned about a certain thing, he answered it, and I have never seen that there is a person more knowledgeable than him. Imam Reza, peace be upon him, was the most eminent Muslim thinker, so he was able to develop the cultural and scientific life of the Muslims. His debates in Khorasan, Basra, and Kufa give evidence for his being the most knowledgeable on the face of earth. During those debates, he was questioned about the most difficult problems and he answered them. So all the religious scholars of his time yielded to him and acknowledged him his excellence over them. Another example of his being the most knowledgeable person is that he could speak all languages. Abu Ismail al-Sindhi has reported, when I was in India, I heard that Allah had an herb proof, so I went out to seek him. I was guided to Imam Reza, peace be upon him, and I went to him. I could not speak Arabic. I greeted him in Sindhi, and he greeted me in my own language. I asked him in Sindhi, and he answered me in it. He was also the first and only Imam who migrated to non-Arab land. I would like to thank my sister-in-law for this beautiful art. It took her some time, but it was worth the wait. Okay, now it's recording, I guess. Yes, it is. Assalamu alaikum everyone. कैसे हो सब? ठीक हो? आज मेरा मशहद में 4th डे है और आज से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मशहद की। तो अभी यहाँ पे मगरिब का वक्त हो गया है। पहले मैं जाके नीचे डिनर करूँगा, फिर डिनर करने के बाद मैं हरम जाऊँगा। हरम जाके फिर मैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ूँगा। नमाज के बाद मौला रज़ा की ज़ियारत करेंगे। फिर मुझे 2 टाइमिंग्स पता चली नौबत हरम इमाम रज़ा की, मुझे वो भी सुननी है, लेकिन शायद मगरिब के टाइम वाली तो अभी गुजर गई होगी। तो फजर को फिर मुझे दोबारा जाना पड़ेगा हरम पे नौबत हरम इमाम रज़ा सुनने के लिए, और ज़ाहिर सी बात है नमाज फजर भी वहीं पे पढ़ेंगे। ये हमारा होटल है, ये लॉबी है। मेरा रूम 4th फ्लोर पे है, 412 मेरा रूम। ये लिफ्ट
और अभी हम जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट डिनर करने। यहाँ से लगी मुझे लिफ्ट खाली मिल गई, ये टच स्क्रीन है। मैं सॉरी रेस्टोरेंट पे जाना है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाना। मैं गलती से जी दबा दिया। जी ग्राउंड फ्लोर ये रेस्टोरेंट का, ये पार्किंग का है, तो मुझे यहाँ पे जाना था, लेकिन मैं गलती से ग्राउंड फ्लोर दबा दिया। चलो भाई, अब रज़ा मौला, और हम अभी पहुँच गए हैं। चलो भाई, ये हमारा बुफे है, ये हमारे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम, खूबस्ती, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे स्टाफ है और यहाँ पे हम डिनर करते हैं। गुड। I usually sit at this place, I eat here. शायद अभी फूड तैयार है या नहीं मुझे पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अपना डिनर, लंच और क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर मिस करता हूँ क्योंकि मैं लेट उठता हूँ। आई थिंक अभी फूड रेडी नहीं हुआ और मैं वेट कर रहा हूँ कि फूड रेडी हो जाए तो हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। अभी थोड़ा टाइम है शायद। वैसे इधर डिनर का टाइम होता है 8 बजे से 10 बजे रात को, और ब्रेकफास्ट का भी यही होता है 8 बजे से 10 बजे, और लंच का होता है 1 बजे से 3 बजे। अभी खाना लग रहा है शायद आहिस्ता आहिस्ता। So we have our dinner ready here. Thanks to this guy who showed me my dinner. His name is Mahdi. All the staff are very welcoming. So I have left my hotel. Now I'm heading towards Haram Imam Reza alayhi salam. Definitely gonna take me at least 20 minutes to get to the Haram. Yes, I'm going to Haram in rush hours. That's why. यार वीडियो की क्वालिटी के लिए मैं पहले ही अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना फ़ोन लेकर आया हूँ। तो अभी मैं इंटर हो रहा हूँ पयंबर आज़म में, और बाब रज़ा इमाम रज़ा अलैहि सलाम के हरम में जो सहन है, जो मैंने अभी मैप देखा था थोड़ी देर पहले, उसके मुताबिक मैंने काउंट किए थे 5 सहन, और गेट्स तो बहुत हैं। तो मैं हमेशा एंटर होता हूँ बाब रज़ा और सहन आज़म पयंबर, और ये मौला रज़ा अलैहि सलाम के हरम का सबसे बड़ा सहन है। यहाँ तक पहुँचने में मुझे लगते हैं होटल से 10 मिनट, और यहाँ से भी आगे अभी आप सोचो कि जितना मैंने यहाँ तक सफ़र किया है पैदल चल के, उतना ही सहन पयंबर आज़म से सफ़र है। डिस्टेंस से मौला रज़ा की शराइन का अंदर जो रोज़ा है, सहन में तो हम पहुँच जाते हैं, लेकिन अंदर जहाँ पे रोज़ा है सहन पयंबर आज़म से गेट बाब रज़ा से रोज़े में अंदर पहुँचने में मुझे लग जाते हैं 10 मिनट। रश की वजह से नहीं, रश तो ऐसे मैं स्पीड में भी जाता हूँ, मसला नहीं, लेकिन डिस्टेंस इतना बड़ा है। इतने बड़े सहन बने हुए माशाल्लाह यहाँ पे मुक़द्दस, मशहद मुक़द्दस है। ये मीनार नज़र आ रहा है मौला रज़ा अलैहि सलाम के रोज़े का, ये रज़ा अलैहि सलाम के रोज़े का मीनार है। और यहाँ पे सिवाय आफ्टरनून टाइम के कोई सा टाइम नहीं जो आपको रश नहीं मिलेगा। फजर के टाइम ये तो रश का सबसे पीक टाइम है। और मैं यहाँ पे आता हूँ हरम पे, मेरी आने की 2 रूटीन है। एक मैं 1 बजे मैं लंच करके 3 या 2 बजे के करीब निकलता हूँ होटल से, फिर 5:30-6 बजे तक इधर बैठता हूँ मैं, और
रात को अभी जैसे मगरिब की नमाज़ है तो मैं कोशिश करता हूँ हरम में पढ़ूँ। अगर ज़्यादा लेट हो जाता हूँ तो मैं होटल पे मगरिब पढ़ के शायद आके पढ़ता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके कि मैं अपनी वाजिबात जो नमाज़ है वो हरम में अदा करूँ। कि यहाँ पे भी अगर आके बंदा होटल पे पढ़े तो फिर फ़ायदा नहीं है। मुझे व्लॉगिंग करनी है इधर। मुझे नहीं पता कि मैंने इतनी लेट क्यों की इधर व्लॉगिंग बनाने में। तो मुझे ज़्यारत में इतना मज़ा आ गया है कि मैं बस अभी वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं तो इसलिए बनानी पड़ रही है। वैसे इरादा था व्लॉगिंग का, लेकिन व्लॉगिंग से ज़्यादा था कि जैसे मेरी हमेशा टिपिकल स्टाइल होता है कि ज़ियारत की वीडियो होती है उसके साथ इन्फॉर्मेशन में देता हूँ। ये फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अभी नजफ़ करबला गए उधर भी एक ना एक वीडियो ऐसे बनाएंगे ज़रूर जो फुल व्लॉग की तरह हो। मतलब देखते हैं अभी आगे। रेस्ट तो कम होने का नाम नहीं ले रहा भाई। अभी और लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं। इस वक्त सबसे रश का पीक टाइम इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त यहाँ पे बहुत ठंडी हवा और अच्छी हवा चलती है। मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। दिन को गर्मी होती है और दिन को जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है जो शराइन है अंदर, वो भी आपको काफ़ी खाली मिलेगा। अनलाइक रात को मैं भी बस मतलब मेरा हाथ लग जाता है जरी में तो मेरे लिए बड़ी बात होती है। ये सारा पैगंबर आज़म के नाम से जो सैन बना हुआ है ये सारा उसी का पार्ट है। ये जहाँ से मैं आया हूँ और ये भी उसी का सैन आज़म पयंबर का ही हिस्सा है। पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज मगरिब वज़ू करेंगे। नमाज का मौसम अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इधर, और रश कम हो जाए बस ताकि ज़ियारत करने का अच्छा मौका मिल जाए। हम तो वैसे ही ज़ियारत करते हैं अरबईन पर, आशूरा पर यूज़ तो हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हमारी कोई नई चीज़ नहीं। लेकिन एक चीज़ है मेरे लिए नहीं कि मशहद में ये सिर्फ जून जुलाई में ही इतना रश नहीं होता। कोई भी बड़ी मनसूबियत हो गई, गदीर 13 रजब या इमाम मासूमी की विलादत हो गई, तो ये मोला रज़ा का सहन, ये हरम आपको हमेशा भरा हुआ ही मिलेगा खाने काबा की तरह। ये हम एक आ गए एक सहन में अभी। लाइव टीवी चल रही है जी। हमें सबसे पहले करना है नमाज का वज़ू। मैं लेट हो गया थोड़ा, मैंने खाना खाने में डिले कर दिया आज कि वो लोग मुझसे बात कर रहे थे अभी फ़ारसी में और मुझे ट्रांसलेट करके उनसे बात करनी पड़ेगी। तो वज़ू कर दे नमाज का, फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। मैं नमाज का वज़ू कर लिया है। अभी मैं जाऊंगा कशफदारी में अपनी चप्पल रखवा कर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में अंदर नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ज़ियारत इमाम रज़ा करेंगे, ज़ियारत इमाम रज़ा पढ़ेंगे। और अभी तो काफ़ी टाइम मुझे यहीं बैठना है कि दोपहर के बाद मैं अभी आया हूँ। तो पहले कशफदारी में से हम रखवाते अपनी चप्पल, फिर चलते हैं मोला रज़ा के हरम में अंदर। شنیدم که صدای حسین گریه کنی برای گریه برگی अपना टोकन मिल गया चप्पल रखवाने का। अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने हरम में इमाम रज़ा। अस्सलामु अलैकुम या गालिब अल-गुरबा या मुहम्मद रसूल ये मेरी नमाज़ पढ़ने की जगह है। आज फुल है लेकिन
आज चलो जगह तो मिल गई है, नमाज़ पढ़ने लगे करते लोग। नहीं, नमाज़ पढ़ ली है, अभी हम जाएंगे हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अंदर इंशाअल्लाह। हम बस अभी इंटर होने वाले हैं। रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, बस नो वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा। वो ख़ुद अली बिन मूसा रज़ा मूसा क़ाज़िम बाबुल हवाइज के फ़र्ज़ंद हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्सलाम अलैकुम या गरीब अल-गुरबा, अस्सलाम अलैकुम या मुइन ज़ुअफ़ा, अस्सलाम अलैकुम या सुल्तान अरब वल अजम, या अबुल हसन, या अली यबना मूसा रज़ा। सुल्तान खुरासान है बस गौस हमारा, अली 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 मूसा रज़ा, अली 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 मूसा रज़ा। जो अब भी मुगी से सफ़े अरबाब अज़ा है, मोला रज़ा, मोला रज़ा, मोला रज़ा है, वो मोला रज़ा है। जो जिसकी रज़ा खालिक अकबर की रज़ा है, वो मोला रज़ा, मोला रज़ा, मोला रज़ा है। कौनैन में सब नेमत करता है ये तक़सीम, करता है ये तक़सीम, और लोगों के लिखे में भी कर सकता है तरमीम। अली 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 मूसा रज़ा, अली 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 मूसा रज़ा। जो कार खुदा, जो कार खुदा करते हुए अब्द खुदा है, वो मौला रज़ा है, वो मौला रज़ा है, वो जिसकी रज़ा। अभी मुझे ज़ियारत इमाम रज़ा पढ़नी है, उसके बाद हम बाहर जाएंगे हरम में दोबारा इंशाअल्लाह मोला को सलाम पेश करेंगे। अभी कुछ ज़ियारतें हैं, ज़ियारत आले यासीन में मुझे अपने अबू की तरफ से पढ़नी है और अपने भाई की तरफ से सलामी देनी है। दुआ को तमाम मोमिनात के लिए जो यहाँ पे नहीं आ सकते आज तक और आना चाहिए, मौला रज़ा अलैहिस्सलाम सबको इज़्ज़त ज़ियारत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।